Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे स्केल अप सीरीज इंग्लिश फॉर द ग्रेड 5 का यूनिट नंबर 2 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज कैंपिंग एट स्कूल. इसको हम पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैंपिंग होती क्या है. कैंपिंग यानी कि कहीं पर कयाम करना, कहीं पे रुकना, कुछ डेज एंड कुछ नाइट्स वहाँ पर गुजारना. अब स्कूल में कैंपिंग क्यों की गई? स्कूल में कैंपिंग ज़्यादातर तब की जाती है कि जब हमारे कंट्री में या हमारे इलाके में कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है. वो नेचुरल डिज़ास्टर किसी ज़लज़ले यानी कि अर्थक्वेक की सूरत में भी हो सकता है. वो नेचुरल डिज़ास्टर आपका कोई फ्लड यानी कि सैलाब की सूरत में भी हो सकता है. तो इट सीम्स लाइक ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कोई नेचुरल डिज़ास्टर है जो कि स्कूल में कोई कैंपिंग होगी. सो वो क्या नेचुरल डिज़ास्टर है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड थ्रू रीडिंग. तो अब चलते हैं हम रीडिंग की तरफ. नाउ इट हैड बीन रेनिंग heavily every day and every night for a week. Alina looked outside one morning and saw that river was overflowing. Dad, look, she called. There's water everywhere. Dad was worried. He quickly turned on the radio. The first thing they heard was a flood warning for their area. It's an emergency, said Dad. We have to evacuate as soon as possible. What does that mean? Asked Alina. It means we have to leave our house and go somewhere safe, answered Dad. Dad and Alina packed some warm clothes and their sleeping bags. They rolled up rugs, lifted chairs onto the table and put books on high shelves. Where are we going? Asked Alina as they loaded the car in the heavy rain. The radio said go to the school, answered Dad. It's on a hill so it will be safe if there's a flood. Dad drove slowly and carefully. It was difficult to see the road through the pouring rain. Alina was amazed that there could be so much rain. She thought of all the water near their house. Will our house be okay? She asked. I hope so, answered Dad. When Dad and Alina finally arrived at the school, a lot of people were already there. It was very noisy and it smelled like wet clothes. Look at all people, said Alina. And a lot more will be coming, said Dad. Let's see how we can help. They went into the kitchen. Some people are making hot soup and others were making lots of sandwiches. Everyone was busy. It was like a big school camp, especially when Alina saw her teacher, Mrs. Khalid. Another teacher, Mr. Harris, came up to talk to the Dad. Dad listened very carefully. Mr. Harris has asked me to join a rescue team, Dad told Alina. A family is trapped in the flood. You can help Mrs. Khalid while I'm gone. Alina didn't want her dad to go, but she thought about the family that needed to get to safe a place. You go, Dad, she said. I'll be fine. Maybe I can help Mrs. Khalid serve the soup. While her dad was away, Alina kept herself busy helping Mrs. Khalid. She helped in serving soup and she looked after the small kitchen. Soon it was night. Alina was very tired, but she couldn't sleep. She sat on her sleeping bag and waited for her dad. It was late when Dad finally came back. Did you rescue the family? Are they all right? Asked Alina anxiously. Yes, they are safe now, answered Dad. Mrs. Khalid says you were a big help here. Alina told her dad how she had told stories to the children and played games with them. Then she took him to the kitchen where she served him soup. Dad gave her a hug and told her she is really helped in the emergency. Then Alina crawled into her sleeping bag and went to sleep. When Alina woke up the next morning, the rain had stopped. It was safe for everyone to leave the school and go home. Alina was very happy to see that their house was safe and sound. There was one thing I liked about all that rain, she said. What was that? Asked Dad. I liked camping at school, said Alina, but I hope we never have to do it again. Now, अब हम मुश्किल वर्ड्स देखेंगे. ओवरफ्लोइंग से मुराद है ज़्यादा हो जाना किसी चीज़ का. वार्निंग एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें लोगों को बताया जाता है कि अब एहतियात करें, ख़तरा है. एमरजेंसी एक अनएक्सपेक्टेड आपके पास सिचुएशन होती है जो बताती है कि कुछ डेंजरस होने वाला है. एवैक्यूएट किसी एक जगह से फ़ौरन निकल जाना और किसी सेफर प्लेस पे जाना. अमेज सरप्राइज होना.
अब हम देखते हैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। एक हफ्ते से दिन रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। अलीना ने एक सुबह बाहर देखा तो दरिया बहता हुआ था। उसने पुकारा, हर तरफ पानी है। वालिद परेशान थे। उन्होंने जल्दी से रेडियो ऑन किया। पहली चीज जो उन्होंने सुनी वो उनके इलाके के लिए सैलाब की वार्निंग थी। ये एक इमरजेंसी है, वालिद ने कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। क्या मतलब? अलीना ने पूछा। इसका मतलब है कि हमें अपना घर छोड़कर कहीं महफूज जगह पर जाना होगा, वालिद ने जवाब दिया। वालिद और अलीना ने कुछ गर्म कपड़े, अपने स्लीपिंग बैग, उन्होंने कालीन को लपेट दिया, कुर्सियां उठाकर मेजों के ऊपर रख दी और किताबें ऊंची शेल्फ पर रख दी। हम कहाँ जा रहे हैं? अलीना ने तेज बारिश में गाड़ी को लोड करते हुए पूछा। रेडियो ने स्कूल जाने को कहा है, वालिद ने जवाब दिया। ये एक पहाड़ी पर है, इसलिए अगर सैलाब आए तो ये महफूज रहेगा। वालिद साहब आहिस्ता और एहतियात से गाड़ी चलाते रहे। मूसलाधार बारिश में सड़क को देखना मुश्किल था। अलीना हैरान थी कि इतनी बारिश हो सकती है। इसने अपने घर के करीब पानी के बारे में सोचा। क्या हमारा घर ठीक रहेगा? इसने पूछा। मुझे उम्मीद है, वालिद ने जवाब दिया। आखिरकार जब अलीना और वालिद स्कूल पहुंचे तो वहां बहुत से लोग पहले से मौजूद थे। यहाँ बहुत शोर था और हर तरफ से गीले कपड़ों की बदबू आ रही थी। अलीना ने कहा, इन सब को देखो, और भी बहुत लोग आने वाले हैं। वालिद ने कहा, चलिए आइए देखते हैं कि हम किस तरह मदद कर सकते हैं। वो किचन में चले गए। कुछ लोग गर्म सूप बना रहे थे और दूसरे बहुत सारे सैंडविच बना रहे थे। सब मसरूफ थे। ये एक बड़े स्कूल कैंप की तरह था, खास तौर पर जब अलीना ने अपनी टीचर मिसेस खालिद को देखा। एक और उस्ताद मिस्टर हारिस वालिद साहब से बात करने के लिए आए। वालिद साहब ने बहुत गौर से सुना। मिस्टर हारिस ने मुझे रेस्क्यू टीम में शामिल होने को कहा है, वालिद ने अलीना को बताया। एक खानदान सैलाब में फंसा हुआ है। मेरे जाने तक आप मिसेस खालिद की मदद कर सकती हैं। अलीना नहीं चाहती थी कि उसके वालिद जाएं, लेकिन उसने उस खानदान के बारे में सोचा जिसे महफूज जगह पर जाने की जरूरत थी। आप जाएं वालिद, उसने कहा, मैं ठीक हो जाऊंगी। हो सकता है मैं मिसेस खालिद को सूप सर्व करने में मदद कर सकूं। जब उसके वालिद दूर थे, अलीना ने खुद को मिसेस खालिद की मदद में मसरूफ रखा। उसने सूप पेश करने में मदद की। वो छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। जल्द ही रात हो गई। अलीना बहुत थकी हुई थी मगर सो नहीं पा रही थी। वो अपने स्लीपिंग बैग पर बैठी अपने वालिद का इंतजार करने लगी। जब वालिद साहब आए तो बहुत देर हो चुकी थी। क्या आपने खानदान को बचा लिया? क्या वो ठीक है? अलीना ने बेचैनी से पूछा। हाँ, वो अब महफूज हैं, वालिद ने जवाब दिया। मिसेस खालिद कहती हैं कि आप यहाँ बहुत मददगार साबित हुई हैं। अलीना ने अपने वालिद को बताया कि किस तरह उसने बच्चों को कहानियां सुनाई और उनके साथ खेल खेले। फिर वो इसे किचन में ले गई जहाँ उसने कुछ सूप पेश किया। वालिद ने उसे गले लगाया और बताया कि वो वाकई हंगामी सूरत हाल में मदद करेगी। फिर अलीना अपने स्लीपिंग बैग में घुसकर सो गई। अगली सुबह अलीना बेदार हुई तो बारिश थम चुकी थी। स्कूल छोड़कर घर जाना अब सबके लिए महफूज था। अलीना को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उनका घर बिल्कुल महफूज है। इस सारी बारिश में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, उसने कहा। और वो क्या था? वालिद साहब ने पूछा। अलीना ने कहा, मुझे स्कूल में कैंप लगाना पसंद था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमें दोबारा कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।